A very warm welcome, good evening at Mommy's World for you and me. And this is the ever first live where we are inviting a few mothers who are brilliant in their profession, in their expertise, and a lot many things they are doing, but we hardly know them. So yes, there have been a lot of cases in this pandemic where moms are actually facing lot many things. There have been cases, there have been some questions, queries. I've been answering the counseling, and lot many other things. So for the same, I thought when there is a lot of negativity around you, you need someone to cleanse your thoughts, and you need someone to give you that push. You really need someone to understand you and who can actually make the moments memorable, that whatever you are doing is right. So yes, today we have started a new series wherein we'll be having some wonderful people who are doing their best to make this world a smaller and happy place. Today we are having one of the MW member. She is a NLP practitioner, a psychologist, a brilliant and intelligent lady, wonderful human being, and indeed helping with the nature. Yes, the lady has been spreading a lot of positivity through her pages. She's been into storytelling. She's been into lot many things. She does pranic healing, and she makes sure she tries to remove the negative energies through the healings. Yes, that's possible. We need not to follow the medication always. That's what Mommy's World have been always believing, and we work on remedies mostly. So today in our first session we have invited Kriti Sharma. Most of you are known to her, and most of you have knowledge, the background what she has, and the wonderful thing she's been into. So we'll be taking her live today, wherein we want each and every query of yours to be sorted. Because unless you uplift someone, you don't help them. Real empowerment starts at home like charity. So yes, I'm just waiting for Kriti Sharma to join here, and I would want her to answer all the queries which we have received in all these few days. She'll be answering your queries related to the positive energy, negative energy, the aura, what are the healings, and lot many things. So yes, and let's have her and let's get these queries sorted, and let her answer all the things what we want to know from her. Hi Kriti. Hello, Hi everybody. Kriti. Hi. How are you? I am great. How are you? All good. A warm welcome for you and me. Thank you so much for that overwhelming introduction. I had to. See, the reason I know you personally, and it is important to give credit. Because you have spent the day and night and money and not many things for the certificate. So yes, we are really happy. Thank you so much. Okay. I'm really looking forward to today. I hear the voice echoing from your side. The voice is echoing from my side. Okay. So I'll just use earphones then maybe. Is it clear now? Yes. Okay. Yes. All That's right. better. Okay, so I really want to know the first thing when we decided about this live, Kriti. You only gave me your energy. Because I told you that we need to give some positivity this time, because there is too much of negativity nowadays. And I want something to be healed from you. We need remedies. And you said, let's do this thing, focus or know your energy. So can you tell me what is this know your energy?
Okay. Now, energy is something which we all experience. हम सबके साथ होता है, हम सब experience करते हैं. अगर हमारी बॉडी में से हमारी एनर्जी निकाल दी जाए तो we are just a piece of meat. प्राण is energy, right? एनर्जी वो प्राण है जो हमें रन कर रहा है. Now, what happens is our physical body has two parts. The one which we can touch, feel, right? And there is an energy body surrounding our physical body. हम उसे बोलते हैं ऑरा. Right. आप सबने सुना होगा एक चीज होती है ऑरा, राइट? जैसे हम किसी से मिलने जा रहे हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं. जब हम उससे मिले तो हमें लगा कि ये इंसान दुखी है, इसके साथ परेशानी है कोई, राइट? हम बहुत ध्यान से अपना चित्त डालना जिसे बोलते हैं, हम बहुत ध्यान से फील करके उसकी दिक्कतों को सुन रहे हैं. 15 मिनट बाद वो आदमी आपसे बोला, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, रिलीफ, आई एम फीलिंग रिलीव्ड. नाउ ही इज फीलिंग रिलीव्ड एंड यू आर फीलिंग टायर्ड. वो जो एनर्जी आपके पास थी, वो एनर्जी आपने शेयर करी, वो एनर्जी थर्मोस्टैट की तरह होती है, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है. तो जब हम फुल ऑफ एनर्जी हैं एंड वी मीट पीपल, वी शेयर एनर्जी, वी शेयर आवर एनर्जी, वी टेक देयर एनर्जी इन आवर सिस्टम. दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज. नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमारा ये जो ऑरा है ना, इस ऑरा में सिर्फ एनर्जी नहीं है, हमने थॉट से बहुत सारी इमारतें क्रिएट कर रखी हैं. Right. हम कुछ भी फील करते हैं, हमें किसी पे गुस्सा आया, कोई इरिटेशन है, कभी कभी 20-20, 25-25 साल पुरानी बातें हमें याद आ जाती है तो हमारा खून खौल जाता है. ऐसा होता होगा ना, सबके साथ होता है. हमारे दिमाग से वो बातें निकलती ही नहीं है, हमारे ऑरा में वो फिट हो रखी हैं. दे आर द क्लाउड्स सेटल्ड इन आवर ऑरा, और हमने कभी उन्हें हटाने की कोशिश भी नहीं करी. हम क्या करते हैं, हम एज नॉर्मल पीपल, हमें पता नहीं है ना, हम क्या करते हैं, हम उन चीजों के बारे में जो हमें तकलीफ दे रही हैं ज्यादा सोचते हैं ज्यादा. जैसे हम सोचते चले जाते हैं ना, देयर इज अ थंब रूल ऑफ एनर्जी, एनर्जी फॉलोज थॉट. जब हमने किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा तो वो जो एक छोटा सा हर्ट का एलिमेंट जो हमारे ऑरा में था, हमने उसको बड़ा करते गए, सोच सोच के बड़ा करते गए. आज वो एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, हमारे मेंटल ब्लॉक जिन्हें हम बोलते हैं. Right. ऐसे हमारे ऑरा में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं. हमारा ऑरा, छेद होते हैं हमारे ऑराज में, देयर आर होल्स, बिकॉज हमने एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, सब कुछ हमारे साथ कैरी किया है. और पता है क्या होता है, द सैड पार्ट इज, नाउ वी आर अननोइंगली कैरिंग दीज बैगेजेस सिंस ईयर्स एंड ईयर्स. अब ये चीजें सिर्फ ऑरा में ही नहीं रह जाएंगी, फिर कुछ सालों बाद ये चीजें जो हमने ऑरा में इकट्ठी की हैं, ये चीजें मैनिफेस्ट करेंगी हमारी फिजिकल बॉडी में एज डिस्कम्फर्ट या डिजीज जिसे हम बोलते हैं. क्योंकि जैसे देखिए, हम गिर गए, हमारे वी हर्ट आवर नी, किसी पत्थर से पैर भिड़ा और हमारे घुटने पर चोट लग गई और हमें खून आ गया. बट ट्यूमर के लिए हमने क्या किया, हम कहीं गिरे, हम कहीं भिड़ गए? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई फिजिकल इंटरेक्शन ही नहीं था. तो कहां से सडनली आ जाता है ट्यूमर? वो जो ऑरा में हमने इकट्ठा किया है ना, वो साल दर साल इकट्ठा करते करते इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है दैट इट मैनिफेस्ट्स इन आवर फिजिकल बॉडी एज अ डिजीज. यस, सो इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि हम ये चीज समझें कि सिर्फ अपर बॉडी को क्लीन नहीं करना है, या सिर्फ साफ कपड़े नहीं पहनने हैं. वो जो हमारे इमोशंस हमने इकट्ठे किए हैं, हमें रोज उन्हें भी क्लीन करना है. इट इज आवर जॉब टू क्लीन देम. क्योंकि अगर वो क्लीन नहीं किया, किसी के लिए हेट्रेड है, हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है, हम वी आर विमेन, वी नो बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जो हम नहीं हैंडल कर पाते हैं. गुस्सा है लोगों के लिए, हेट्रेड है बहुत सारी, अब हमारे सिस्टम में है, सालों से है. वो हेट्रेड सामने वाले इंसान का कोई नुकसान कर ही नहीं रही, पता है, वो नुकसान सिर्फ हमारा कर रही है. किसके सिस्टम में है? वो हमारे सिस्टम में है. हर बार जब हम उसे सोचते हैं, किसका खून खौलता है? हमारा. वो जो थॉट ऑरा में है, हम उसे हर बार एनर्जाइज करते हैं, हम जितनी बार उस चीज के बारे में सोचते हैं. और हम क्या करते हैं, हमने 1 या 2 जनों से बात करी तो वो एनर्जी शेयर हुई, हमें हो सकता है सोल्यूशन मिले. मैंने ये नोटिस किया है, मतलब आई गो टू द पार्क विद माई डॉटर,
and there are people sitting and talking, वो पता है क्या करते हैं? There is one person who is sharing कि मेरी फैमिली में तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बहुत परेशान है, वो बहुत परेशान है. जो सामने बैठ के सुन रहा है ना, वो इंतजार कर रहा है इसका खत्म हो तो मैं मेरा बताऊं, मेरी लाइफ में तो इससे भी ज्यादा दिक्कत है. अरे बाप रे. It is like a competition going on. कि नहीं, मतलब वो ये बताना चाहता है कि सिर्फ तेरी जिंदगी में दुख नहीं है तो रुक, मेरी में भी बहुत है. No, but I guess that's human tendency. Because nowadays what is happening because of this pandemic, अब ये एक हमारे पास reason हो गया है कि हाँ जी pandemic है. Otherwise, I believe we all here. If we keep cribbing. So yesterday I read something. You are inviting the way you think. So if you think positively, affirmations like what do you say? So if you think positive things will happen around you. If you think negative, so much of negative, and then you will be, one of the toxic person around yourself. So what I want to know, how difficult or how easy it is to remove the toxicness, this negativity, and it is not easy for everybody to stay positive. I know people that who are actually going through a lot of things. So, you know me, I also listen to so many things from so many mothers. And yes, there are times that I also feel tired. So I remember he told me one day कि because their energy is affected you. But I think I'm back to my thing, back of the mind, मैं सोचती रहती हूँ चलता है. But then what is the remedy? I'll tell you the remedy. Not go in the same lane, same zone. I will tell you the remedy. Yeah. Today I'll tell you the remedy. Let's first understand ये जो हमारे अंदर negativity है, मैंने आपको बोला कि you need to think positively now. Now imagine आपका बच्चा पेंटिंग कर रहा है, उसने ब्लैक कलर किया, अब उसके ऊपर वो पिंक कलर कर रहा है. आपको क्या लगता है वो पिंक कलर की क्लैरिटी कितनी रहने वाली है, या वो कितना स्टे करेगा, या वो कितना दिखेगा? नहीं दिखेगा. हमें पहले उस ब्लैक को हटाना है, फिर पिंक कलर करना है. This is what we need to do with our system. First we need to clean, then we need to think positive. जो हम कोशिश करते हैं कि हम प्यार बांटे या हम compassionate रहें, वो तब होगा जब पहले हम खुद को क्लीन करेंगे. So cleansing is the first step. हम सीधे पॉजिटिव सोचने नहीं जा सकते. जिस इंसान के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप उसे बोलो पॉजिटिव सोच, वो बोलेगा कैसे सोचूं, इतनी सारी दिक्कतें हैं. राइट. तो उसे पहले उन दिक्कतों से डील करना सीखना है, बाद में वो पॉजिटिव सोचेगा. तो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सिट योरसेल्फ डाउन एंड द रूल इज खुद से सच बोलना है. खुद से 101%, 101% यू नीड टू स्पीक द ट्रूथ टू योरसेल्फ. आपकी कहाँ गलती है, आपने क्या गलत किया, व्हाटएवर. सी, आपकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है. Your soul is your responsibility. आपकी mother-in-law, father-in-law, husband, not even your child's soul is your responsibility. आपकी responsibility अपनी soul की है. तो आपने अपनी soul के लिए क्या किया? You are continuously carrying different emotions in your aura. वो aura, और आप इतना सोच रहे हैं उन चीजों के बारे में कि वो मैग्नीफाई होती चली जा रही हैं. पहले आप कम स्ट्रेस्ड थे, अब आपका स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है क्योंकि आपने अपनी मम्मा से भी वही चीज डिस्कस की, अपने दोस्तों से भी वही चीज डिस्कस की. जितनी बार डिस्कस किया आप उतनी बार रोए. आपने उस थॉट को मैग्नीफाई करके बहुत बड़ा बना लिया है. आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है, उसे बड़ा नहीं बनाना है. सो सिट योरसेल्फ डाउन, टॉक टू समबडी जो आपको पता है आपको सोल्यूशंस देगा. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. रेमेडीज पे पहुंचने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे. I think everyone watching, I would like you to do this. Just take your left hand. Yeah, there are a few questions also I will take. Once you, Okay, let's do this experiment first. Yeah, sure. Everybody, take your left hand, please. Yeah. Put your left hand like this, and you need to say "I hate you" to this hand. 10 बार बोलेंगे full शिद्दत के साथ. Okay? We will say "I hate you." Let us begin. I hate you. 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 अब इस हाथ को यहीं रहने देंगे, राइट हैंड लेंगे. We'll put it like this and we'll say I love you to this hand. I love you. 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 I love you.
आई लव यू। अब आप बताइए कौन सा भारी है कौन सा हल्का है? This actually was. I आप can. खुद बताइए Yes, I can feel. कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। ये हमने सिर्फ 10 बार इसे आई हेट यू बोला है और ये ऑलरेडी भारी है हाथ हमारा। हमारे ऑरा में हमने लोगों के लिए क्या क्या नहीं सोचा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, हमने सब अपने पास संभाल के रखा है। आप सोचो हमारा सिस्टम लाइट फील करेगा कैसे, हम खुश फील करेंगे कैसे, इतना कुछ इकट्ठा कर रखा है। उसे क्लीन करेंगे अपने आप हल्का हो जाएगा। क्लीन करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। It is your job to clean your emotional body, to clean your aura of all these thoughts. और कुछ बहुत रॉकेट साइंस है ही नहीं। एनर्जी फॉलोज थॉट, सिंपल सा थंब रूल है। इसी थंब रूल से इकट्ठा भी हो जाता है और छूट भी जाता है। Our Yes. viewers has done this experiment, Priti. I can see that they're responding. Even Okay. Shweta and Preeti, Sarapreet, everybody has Yes. done this experiment. The left and right one, they say the left one seems very heavier. Yes, yes. Because that is the weight of hatred. और हम कितना देते हैं। जिसको हेट्रेड बोला है उस तक तो जो गया वो छोड़ो, जाने दो। आपके पास क्या रह गया वो तो सोचो। Yes, So and this there is always, I guess, situation or a time when whatever we are talking about them, it is never reaching them. It's within us. Because Yes, we yes. cannot deliver the same thing to them. We Yes, can't feel yes. that. We can't Yes. convey to them that we are thinking these things for you. And that's the Yes. reason I guess most of the people give up probably on life or on the thought. Yes, 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 they do. First query from Rupa. Yes. Is how to keep ourselves calm when full of negativity around you, because एक level तक सब संभाल लेती हूँ, but limit के बाद I just burst. This is, Okay. I guess, a very, very common thing. Very common. Every women can relate to it. Yes. प्रॉब्लम्स कई लेवल पे हैं। पहले प्रॉब्लम तो ये है कि हम कम्युनिकेट ही नहीं करते। हमारी इंडियन सोसाइटी में कम्युनिकेशन इज बार्ड, इट इज सिवियरली हैम्पर्ड। जब हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हमें छोटी सी चीज बुरी लगी, हमने कम्युनिकेट नहीं किया, दूसरी बार बुरी लगी, कम्युनिकेट नहीं किया, 6 महीने तक कम्युनिकेट नहीं किया, उसके बाद हम आउटबर्स्ट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लेटर में प्यार एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। देयर इज गोइंग टू बी एन आउटबर्स्ट एंड यू नीड टू स्टार्ट कन्वेइंग थिंग्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बिकॉज अगर आपने कन्वे नहीं किया, वो आपका सिस्टम खराब कर रहा है एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ योर सिस्टम। कुछ भी है, चाहे if even if they're my parents, I feel hurt because of anything which they have done. With all due respect, I will tell them कि मम्मी पापा ये चीज ना मुझे इस तरीके से बुरी लगी। ना इसमें दो चीज हो सकती है, या तो वो वही करना चाह रहे थे या फिर उनकी इंटेंशन कुछ और थी, मैंने गलत समझ लिया। जो भी केस होगा मुझे क्लोजर मिल जाएगा। तो कम्युनिकेशन इज द की हियर। वी नीड टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। कोई रास्ता ढूंढने की तरफ चलें तो सही। हम तो बोलते ही नहीं है। इंडियन वुमेन आर ब्रॉट अप लाइक दैट कि आपको बतानी ही नहीं है अपनी तकलीफ, किसी को भी नहीं बतानी। अगर बताओगे नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे? कम्युनिकेट विद द पर्सन। और अपनी मम्मी को बताने से सोल्यूशन नहीं होगा, जिससे प्रॉब्लम है उससे कम्युनिकेशन करना है। It should reach them, right, and it should reach them constructively. अब क्या हो रहा है, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर आप उस वक्त कम्युनिकेट करोगे ना, you are going to make a mess, rest assured. What you need to do, you need to calm your system down. अपने सिस्टम को उस वक्त छोड़ दो। Don't react in that situation. गुस्सा है ना, बहुत देर नहीं कर सकती हमारी बॉडी, because it commands lots of energy. गुस्सा करके हम सो जाते हैं। If you can relate, हमें बहुत तेज गुस्सा आता है, उसके बाद हम 2-3 घंटे के लिए सो जाते हैं, because our body needs lots of energy. So, if you are in a state of anger or irritation, let yourself cool down first. 1 दिन या 2 दिन बाद उस मुद्दे को उठाइए और एक ऐसे तरीके से बात कीजिए जिससे सोल्यूशन निकले। कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे घरों की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम जब इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहे होते हैं ना, तो वो जो एनर्जी है हमारी, क्लॉग्ड जो एनर्जी है, वो हमारे घर में भी होती है। हमें घर को भी क्लीन करना है।
क्लीन Right. कैसे करना है ये मैं बताती हूँ. सबसे पहले खुद को क्लीन करना बताती हूँ. हाउ टू क्लीन आवरसेल्व्स. हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाएंगे, खाना बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, खुद के लिए 15 मिनट नहीं देते हम. वी नीड टू इन्वेस्ट 15 मिनट्स इन आवरसेल्व्स. कहीं भी जाकर बैठिए, वेयर देयर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं? ग्राउंड से प्राण मिलता है हमें, अर्थ, मदर अर्थ. सन से मिलता है. ग्रीनरी हमें क्लीन करती है. कहीं हवा चल रही हो छत पर या आपके गार्डन में, 15 मिनट निकालिए, वहां जाकर बैठिए. थंब रूल, एनर्जी फॉलोज थॉट. आपको इंटेंशन रखनी है कि ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके पास हैं, आपके सामने हैं, जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग योर ऑरा एंड दे आर एनर्जाइजिंग यू विद गुड फ्रेश हीलिंग एनर्जी. जानबूझकर अपने स्ट्रेस, इरिटेशन, इसको रिलीज कीजिए और अच्छी एनर्जी को इनहेल कीजिए. यू कैन यूज एक्सहेल एंड इनहेल. जब आप बैठे हैं, Sorry to interrupt you. Do you also suggest chant something in those 15 minutes, or because thoughts, there are plenty of thoughts coming and going. One needs one focus. So chanting of anything like Om when we say. So anything we can say. You can chant Om definitely, because Om chant आपको बहुत purify करता है. There are a few meditations online which are there. I'll share the link with you. You can share with everyone. उन meditations में पंचभूत ही आपको दिखाए हैं. Okay. There is a meditation music which you can listen to, and वो पंचभूत ही आपको दिखाए हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि क्या है, अगर हमने खाली दिमाग छोड़ दिया, वो सोचेगा वही जो दिक्कत है, राइट? और मेडिटेशन हील करने की जगह हमारी प्रॉब्लम्स को और बड़ा कर देगा, क्योंकि हम गार्डन में बैठ के बहुत शिद्दत से सोच रहे हैं हमारी दिक्कतों के बारे में. वो नहीं करना है. नाउ मेडिटेशन सिर्फ वही नहीं होता है कि हम हाथ बंद करके ऐसे करके वी आर सिटिंग एंड वी आर डूइंग. हम खाना बनाते बनाते भी अगर कुछ सोच रहे हैं और बहुत इंटेंसिटी से सोच रहे हैं, दैट इज मेडिटेशन. सो वी नीड नॉट मेडिटेट ऑन आवर प्रॉब्लम्स. Yeah. So Sarapreet, just a second. Sarapreet says, Yeah. But our society has this habit of what elders say or finish right, and the younger one, even their correct, has to say sorry at times. ओके, तो सॉरी बोलने से हम तो छोटे नहीं हो गए. कोई बात नहीं, क्या हुआ? अगर किसी को इस चीज से खुशी मिल रही है तो ठीक है ना. देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी इंसिडेंट सुनाती हूँ. मैंने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म देखी थी ऑन इंस्टाग्राम ओनली, आई थिंक. लोकल ट्रेन, मुंबई की लोकल ट्रेन की ही बात है. देयर वाज अ बॉय जो नया नया मुंबई गया था. नाउ ही वाज स्टैंडिंग देयर एंड पीछे उसके आगे एक आदमी खड़ा था. जब झटका लगा, स्टेशन पे ट्रेन रुकी, तो वो आगे वाले आदमी से भिड़ गया. आगे वाले आदमी को लगा, ही थॉट दैट दिस पर्सन वाज ट्राइंग टू स्टील माय वॉलेट. तो वो पीछे मुड़ा और उसने बहुत सारी गंदी गंदी गालियां उसको दी. ही सेड lots of things. Now this man got down on the next station and this boy was terrified. He started to cry. उसके बाद वो कहीं गया नहीं, किसी से मिला नहीं. He was scared to step out. After a few days, he went to the local train again and he saw the very same incident happen to somebody else. बहुत गालियां पड़ी उसको भी, because उसे भी लगा कि ये वॉलेट ले रहा था ना. जो जिस आदमी ने गालियां दी वो नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गया. Now this boy asked the man कि अभी तुम्हें इतनी सारी गालियां उसने बोली, why are you not sad about it? He said कि वो मुझे सिर्फ 2 स्टेशन पहले से जानता है, मैं खुद को पिछले 30 साल से जानता हूँ. Yeah. I agree. Such an important message here कि क्या फर्क पड़ता है, इसने हमारे बारे में ये सोचा, उसने हमारे बारे में ये सोचा, लोग हमें जज कर रहे हैं, हमें सॉरी बोलना पड़ गया. कोई फर्क नहीं पड़ा. क्या आपको अंदर से पता है आपने जो किया था सही किया था? अगर उसमें आपने सही किया था तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. सामने वाले की, देखिए, हर जने की एक टेंडेंसी है और कोई भी बुरा या अच्छा नहीं है. एवरी सोल इज गोइंग थ्रू इट्स ओन जर्नी. आपकी सोल ने कंपैशन में, लव में कुछ नए लेसन सीखे हैं. उनकी सोल ने शायद वो लव और कंपैशन के लेसन अभी तक सीखे ही नहीं है. तो हर जने की अपनी एक प्रोसेस है, हर जने की अपनी जर्नी है. सो लेट देम हैव देयर जर्नी. उनकी जर्नी से आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए. आपको इफेक्ट तब होगा जब आप जानबूझकर उन सब चीजों को पकड़ोगे कि ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, ऐसे क्यों बोला मुझे.
तब वो चीज आपको इफेक्ट करेगी। अगर आपने ये सोच के किया कि वो उनकी टेंडेंसी है, मुझे परेशान करने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करना उनकी टेंडेंसी है, तो वो करेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। let her do that. That is not me. That is what is important. कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है doesn't matter. आप आपके बारे में क्या सोचते हो, that is what is important. That note, I really want one answer from you, Kriti. We have, if you remember watching us, Pallavi. And I would not discuss the problems because I know her problems. Now the question she is asking here is, what if a person is not ready to communicate or discuss the problem being faced? And trust me, she's facing it big time. The communication, what we're talking, like Kitty also asked that this is difficult to communicate nowadays. Now this Pallavi is or trouble in life, and I really ask you because that other person is not ready to communicate with her. Okay, okay. She's sulking, she's crying. Though I have counseled her many times, Okay. like always, but I don't Okay. know. सी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम अटक जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। इन दैट सिचुएशन आई वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट सीक प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज वो लोग ब्लॉकेजेस निकालने में एक्सपर्ट हैं। डोंट गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, यू डोंट नीड साइकियाट्रिस्ट, गो टू काउंसलर। वो काउंसलर आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा, उसके रूट कॉज को समझेगा, आपको क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको ब्रेक डाउन करके बताएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम खुद नहीं समझ पाते कि अब क्या करना है। इन दैट सिचुएशन I strongly recommend, please seek professional help. Go to a counselor or a therapist. वो आपको आपकी सिचुएशन स्पेसिफिक पे गाइड करेंगे कि क्या किया जा सकता है। Pallavi, I guess you got your answer. I think Kriti is right. And if there is no problem, we can discuss on this personally again. And we can take Kriti on phone call or something, and we'll take this ahead if anything required to be discussed. So Kriti, Sonika is asking how to control short temperament. ओके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिएक्शन नहीं देने की। सी बहुत सारी चीजें, जब पहली बार आपने पियानो बजाया या पहली बार जब आप लिखने लगे थे तो क्या आपने बहुत सुंदर लिख दिया था? नहीं ना, बहुत प्रैक्टिस करी, मम्मी पापा से 2-4 फटके भी खाए, तब जाके यू वर एबल टू राइट ब्यूटिफुली। इट टेक्स प्रैक्टिस। यू नीड टू प्रैक्टिस नॉट टू रिएक्ट। उस वक्त आपको अपना रिएक्शन कंट्रोल करना है। अगर आपने उस वक्त अपना रिएक्शन कंट्रोल कर लिया ना, यू विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड लेटर ऑन। रिस्पॉन्स और रिएक्शन में बहुत फर्क है। रिएक्शंस हमेशा गिल्टी की तरफ लेके जाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था। सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट। मोर यू प्रैक्टिस द एक्सपर्ट यू बिकम। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग इट। एक बार गलती होगी, दूसरी बार, हर बार आपका माइंड इतना स्मार्ट है, वो हर बार आपको याद दिलाएगा, देखो रिएक्ट कर दिया, रिएक्ट कर दिया। You just need to listen and to stop. वो बोलेगा no reaction। जिस दिन पहली बार आप उसका no reaction सुन के रुक गए ना, job is done। अब आपसे reaction control हो जाएंगे उसके आगे। So you keep practicing. Really wonderful to hear because at times we all lose our temperament. We are, flying some on another level. होता है, और हम तो बच्चों के साथ ही कर देते हैं बहुत बार। यस बहुत तेज गुस्सा आया और हमने बच्चों को इतनी जोर से डांट दिया। उस वक्त हमारा दिमाग, अगर आप खुद से सच बोलो, आपके दिमाग ने आपको बोला था रुक जा, ये सही नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, हम उस इमोशन में इतना ज्यादा बॉइल कर रहे थे दैट वी वेंट अहेड विद व्हाट वी नीडेड टू डू। हमको बस इसी की प्रैक्टिस करनी है कि वो जब दिमाग ने बोला ना अलर्ट बटन, रुक जाओ, स्टॉप, यू नीड टू स्टॉप। और जिस दिन पहली बार हो गया ना, उसके बाद से हो जाएगा। Keep practicing. I hope you got your answer. So practice this next time. Anyway, you're losing your temperament. Kriti, Shweta is asking how to bring about the correct positiveness in our mind and body that we pass and we same to our family members, especially our children. Okay. Now the thing is, आप जिस एनर्जी को फील कर रहे हो ना, जो आपके ऑरा में है, आपको डेलिबरेटली उसे बांटने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही बट जाएगी। आपकी फैमिली में, आपके आसपास वालों को आप अपने आप शेयर करोगे, यूजुअली ही वो शेयर होगी। आपको क्या करना है, आपको खुद अच्छी एनर्जी में रेवरबरेट करना है।
Right. आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि मैं जिस एनर्जी में हूं वो अच्छी होनी चाहिए. नाउ उसको आप कैसे अच्छा करोगे? पहले तो वो ब्लैक कलर हटाएंगे. What you need to do is you need to clean your aura deliberately. एक तो वो जो मैंने बताया आपको, you can find 15 minutes any time of the day, find 15 minutes for yourself. अगर आपके पास फोन नहीं है, ईयरफोन्स नहीं है, don't do anything. Just go to the garden or any place which is open. Inhale करते वक्त सारी good energy you need to inhale, और exhale करते वक्त release everything. माफ करो, जाने दो. हर exhale के साथ खुद को ये बोलो कि मैंने माफ किया, लोगों को, खुद को, सबको माफ किया. I let go of stress, anxiety. You do it for 25 breaths. सिर्फ 25 ब्रेथ के लिए अगर आपने ये कर लिया, you can notice the difference. आपका सिस्टम क्लीन कर दिया उसने आपको. Right. It is all gone and you have inhaled lots of positivity. ओम चैंट्स हम घर में भी चला सकते हैं, बिकॉज हम घर में जिस एनर्जी को बार बार सोच रहे हैं, जिस चीजों के बारे में, that energy is polluting the energy of our home also. So what we can do is we can play Om chants in our home. बहुत लो वॉल्यूम पे चला के छोड़ दिया, 1 hour in the morning or 1 hour in the evening, it is going to do the job. Yeah, Mahamrityunjay works wonders. This Mahamrityunjay mantra. A few days ago, and it was about an hour only. Okay. And I'm sorry, my call has come now. So yes, it works. Actually works. Yes. Okay. Yes, it works because ये जो sounds है ना, ये sounds हमारी energy को, हमारे आसपास की energy को, they purify. And when that energy is purified, we definitely feel better. हम वो जो बाहर से खुद को क्लीन करके पॉजिटिव लेके आए ना, वो स्टे करेगा. अब हम नहाते रोज हैं तो हमें खुद की ऑरा की क्लीनिंग भी रोज करनी है. ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया अब हो गया महीने भर का. That does not happen. I want to know one basic thing, Priti. Yes. It's in human tendency to get angry. Like Aparna is saying कि आजकल हम लोग वैसे ही अपना जितना फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पे निकालते हैं. तो हम लोग पूरा दिन कितना भी पॉजिटिव रहे हों, हम लोग कितना अच्छा से अपना दिन स्पेंड किया, सब इनफैक्ट दिस हैज हैपेंड मेनी टाइम्स विद मी एज वेल. The entire day goes very well. पर वो एक होता है ना कि शाम आते आते शायद you're tired or pissed off with something else. ये आई गेस बहुत सारी मॉम्स के साथ होता होगा कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उसका वो जो शिकार है वो बच्चे होते हैं. Okay. In that thing, how do you suggest कि कंट्रोल खुद के ऊपर है, वो बहुत है. How to do that? Okay, I'll tell you that. पहली बात तो प्रॉब्लम वही है, हमने ब्लैक कलर के ऊपर पिंक पेंट किया है ना, वो ब्लैक कलर तो हटा ही नहीं. हुआ क्या, जब पानी की ड्रॉप गिरी तो वो पिंक तो हट गया, ब्लैक बाहर आ गया. We need to remove the black. आप करके देखिए. 21 days you need to clean your aura every single day intentionally. ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है. आप देखिए आपके सिस्टम में ये चेंज अपने आप आएगा कि आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो शाम तक बच्चे पे निकल जाती थी, अब वो नहीं निकल रही है. आप खुद नोटिस करेंगे क्योंकि आपने पैच वर्क किया ही नहीं है. आपने ब्लैक को हटा के पिंक कलर लगाया है. अब वो पिंक स्टे करेगा आपके ऊपर. एंड एनर्जी वाइज अगर मदर्स बहुत काम करती हैं, दे वर्क टायरलेसली. आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड एब्डोमिनल ब्रीदिंग. जब आप शाम को उठते हैं, अगर सोते हैं तो सोकर उठने के बाद, बिफोर यू हैव योर टी, गिव योरसेल्फ 3 to 4 minutes. आप बैठिए और आप सिर्फ पेट से सांस लेना है आपको. हमारा डायफ्राम पेट में होता है ना, पेट के पास है. हमें हर बार when we breathe in, our stomach should blow up like a balloon, and every time we exhale, it should go back in. Okay. Just do it for 3 to 4 minutes. Your energy levels would be high till at least 10 or 11 o'clock. आप ना थकी. क्या होता है, मोस्ट मदर्स के साथ ही होता है, क्योंकि वो फिजिकली टायर्ड होती है ना, इसलिए उन्हें गुस्सा ज्यादा आता है. राइट? क्योंकि वो फिजिकल टायर्डनेस एंगर में कन्वर्ट होके बच्चों पे निकल जाती है, हस्बैंड पे निकल जाती है. तो हम फिजिकल टायर्डनेस का हम इलाज करेंगे ना. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड, ये जो विमेन है ये न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड होती हैं, बिकॉज सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगी, खुद बचा हुआ खाएंगी. राइट? मल्टीविटामिन बच्चों को भी देंगे, हस्बैंड को भी देंगे, हमारे पास बचेंगे तो लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं. नो,
आपकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर आप ठीक हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप खुश हैं, तो आपके आसपास वाले सब खुश हैं। आप नोटिस करो शालू जी, हम विमेन ना इतनी स्ट्रांगली रेवोबरेट करती हैं एनर्जी में कि हमारा हस्बैंड अगर सैड मूड में आया है ना, हमारी खुशी उनकी सैडनेस को खुशी में बदल देती है। लेकिन अगर हमारे घर में बाकी सब खुश हैं और अगर हमारा मूड खराब है, हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि हम सबका मूड खराब कर देते हैं। we reverberate in that energy. हमारी एनर्जी ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी इज फिनोमिनल। तो हमें इस एनर्जी का ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं है, उसका इफेक्ट हमें हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे फाइनेंसेस में भी दिखेगा। सो यू नीड टू मेक श्योर आप खुद की एनर्जी का ध्यान रख रहे हो। क्लीन करो, फिजिकल बॉडी को एनर्जाइज्ड रखने के लिए मेक श्योर यू आर टेकिंग गुड न्यूट्रिशन, और शाम को 4 or 5 o'clock just invest 3 to 4 minutes doing abdominal breathing. पेट से सांस लेनी है और जितना प्राणायाम आता है कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, एनी प्राणायाम यू वांट टू डू जस्ट डू। आप आज ही करके देखो, अभी आफ्टर दिस सेशन इज ओवर जस्ट डू इट, और रात को सोने तक आपकी एनर्जी नोटिस करना। योर एनर्जी वुड नॉट बी एग्जॉस्टेड। Just you all can try it. Yes, last question I would say, जो सबका होगा ये पूछ मैं रही हूँ, पर मैंने बहुत फेस किया है, क्योंकि whenever I Okay. talk to my mom, ये हमेशा आज मैम सुबह से उठी हूँ, आज तक भारी है। अब उसका वो रीजन क्या रहा कि वो रात को रोई है, कि रात को Okay. टेंशन रहा है, कि फाइनेंशियल क्रंच है, हस्बैंड की झगड़ा है, मदर इन लॉ सुना है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट लाइक यू सेड वो सब टेंशन लेते लेते सो गई है। वो जब सुबह उठी है तो इतनी इफेक्टिवली दर्द कर रहा है। व्हाट इज द रेमेडी फॉर दिस? बिकॉज़ मेडिकेशन विल वर्क टेम्पररी, एंड आई बिलीव कि अगर हम लोग प्रॉपर रेमेडी लेते हैं तो वो रूट कॉज पे असर करती है। Yes, Do you yes. suggest honestly, I have heard, नमक रख लो कॉर्नर में घर के, एक ये वाला कर लो कॉर्नर में, bring गोबर something, so lot many things, remedies भी बहुत सारी हैं, but what do you suggest in this case जहाँ पर बहुत सारी मॉम्स में ये भी पॉसिबल नहीं होगा कि घर के कॉर्नर में नमक भी नहीं रखना, बिकॉज अलाउड नहीं है, हस्बैंड नहीं मानेंगे, तो वो मेंटली कैसे अपने आप को फिट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो खुद ही। आई नो यू हैव आंसर्ड दिस, बट टू कम आउट फ्रॉम दिस टेंशन इन द मॉर्निंग इटसेल्फ फ्रस्ट्रेटेड। I will suggest. I'll give you the answer. I'll give you the answer. उससे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना हाथ यहाँ लाइए। Put your hand here. Close your eyes. Imagine that you have a pizza in your hand. Okay, पिज्जा का स्लाइस है हाथ में। उस चीज की, मेल्टेड चीज की खुशबू आ रही है आपको। यू कैन स्मेल दैट, यू कैन स्मेल द टॉपिंग्स। नाउ टेक अ बाइट ऑफ द पिज्जा, टेक अ बाइट एंड swirl it around in your mouth. वो टेस्ट आपके मुंह में घूम रहा है। क्या आपकी बॉडी ने सलाइवा से रिएक्ट किया? is your mouth watering? Yes, it does. Just by thinking about pizza, your mouth is watering. तो हमारा ब्रेन जो है ना, इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता। हमारी फिजिकल बॉडी इमेजिनेशन पे भी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे रियलिटी में करती है। अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम, आप जितना उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे वो मैग्नीफाई होगी। एक टेक्निक कीजिए, सोने से पहले वापस खुद को क्लीन कीजिए, प्रे कीजिए गॉड को कि आपकी सारी चीजें एक्सहेल के साथ बाहर जा रही हैं। यू आर इनहेलिंग पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी 10 to 20 ब्रेथ्स इनहेल करने के बाद हाथ उठाइए और जिस चीज से परेशानी है ना उसको आशीर्वाद दे दो। जस्ट ब्लेस। फाइनेंस में प्रॉब्लम है ना, जस्ट ब्लेस। यू हैव टू सी दैट फ्रॉम हियर, फ्रॉम टॉप ऑफ योर हेड, गॉड्स एनर्जी इज कमिंग टू यू, और आपके हाथों से निकलते हुए वो उस चीज तक जा रही है जिस चीज में परेशानी है। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद फाइनेंसेस, ब्लेस योरसेल्फ विद फाइनेंसेस। अपने को अच्छे गुड फाइनेंसेस, गुड अकाउंट बैलेंसेस से ब्लेस करो। जब आप ब्लेस करोगे, आपकी बॉडी, क्योंकि इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर सकती है, वो ये बिलीव करेगी कि हाँ हो गया, ब्लेस हुआ तो हो गया। और हाथों से एनर्जी निकलती है,
If you want, you can experiment this. Just press your fingertips. Everyone, just press your fingertips. अपने center of the palm को press कीजिए. Put your hands like this. Tongue on the palate. And inhale and exhale 5 times slowly. Abdominally, just inhale and exhale. हाथों को ऐसे रखते हुए, जैसे हाथ के बीच में कुछ है. Inhale कीजिए. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. अब बहुत slowly, very slowly, take your hands away and again bring them closer. बहुत धीरे धीरे कीजिए, हाथों को थोड़ा सा दूर ले जाइए, वापस थोड़ा सा पास लाइए. क्या हाथ के बीच में कुछ महसूस हो रहा है आपको? Can you feel something? Why do I feel a little heat? Something. Okay, you can feel something rolling. Yeah. Some people feel it like elastic. जैसे रबर बैंड है हाथ के बीच में, ऐसे खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, फिर वापस. Kind of a spongy thing. That is energy. Energy. When we bless, हमने अगर ये बोला that divine energy is coming to me and I am blessing my mother-in-law with lots of love and compassion. Just bless. वो bless करने से जो आपके अंदर अटका है ना, ऑरा में ब्लॉक्स, वो निकल जाएंगे. आप माफ कर दोगे, उन तक आपने प्यार शेयर किया है, पलट के 1-2 साल बाद प्यार आ ही जाएगा, क्योंकि आप तो रोज शेयर करके सो रहे हो. यू आर शेयरिंग लव विद देम. और प्यार की सबसे अच्छी बात यह है, हम जैसे ही शेयर करते हैं ना, जो हमारे पास है वो बढ़ जाता है. As soon as we share love and happiness, जो आपके पास है वो बढ़ गई. So do this trick. Kriti, this is the reason why I praise you always, that you make us believe in few things that we hardly know. It's not me. It's not me. It's just happening. I am just a channel. जैसे आपने चैनल बन के ब्लेस किया ना, I am just a channel. You are the blessing, you are a divine soul. The reason I connect you always is this that we can, like we say, the more knowledge we share, it always goes. It always increases. Just share love. वो बढ़ जाएगा. आपको जो दिक्कत है ना, आप उसको ब्लेस करके सोइए और खुद को ये बताकर सोइए that next day, tomorrow when I will wake up with a better finance or with better relationships. Whatever you are struggling with, खुद को ये affirm करके सोइए, नहीं होगा अगले दिन सरदर्द. You will wake up perfectly fine, absolutely happy. I guess without, I was ready with the answers, questions here, but I have got more than what the questions I have written. So yes. अच्छा, एक very important चीज I would like to say. Yeah. Now, since the times are very tough, there are lots of people who are coming to us and telling us their problems. Yes. हम unknowingly उनके साथ हमारी एनर्जी शेयर करते हैं, Yes. उनकी तकलीफ को अपना बना लेते हैं, राइट? हमें उस तरीके से उनकी बातें सुननी है जैसे वो कमल के पत्ते पे पानी होता है ना, इट इज देयर बट इट इज नॉट अटैच्ड. Yes. हमें ऐसे सुननी है. नाउ हम इस हैबिट में नहीं है, हम सुनते हैं तो हम फील कर ही लेते हैं क्योंकि हम ऐसे ही हैं. क्या देयर आर अ फ्यू ट्रिक्स विच आई वुड लाइक टू शेयर. जस्ट क्लोज योर ऑरा. हाउ यू कैन क्लोज योर ऑरा? जब आपसे कोई ऐसी बात कर रहा है, आप अपने ऑरा को अगर क्लोज करोगे तो उसकी जो प्रॉब्लम्स या उसका जो लो फीलिंग है वो आप तक नहीं आएगा. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? व्हेन यू आर लिसनिंग, जस्ट पुट योर थम्स हियर एंड क्लोज. Okay. राइट? और यू कैन जस्ट हाथ ऐसे बांध के बैठ जाते हैं, क्लोज कर लिए, राइट? और यू कैन क्रॉस योर लेग्स. Okay. When we do these three or any one of these, our aura gets closed, and we have to give an instruction, instruction देना है that I don't want to share the low energy or any energy with this person. आप सुनिए उसकी बात, उसे solution भी दीजिए. ऐसे लोगों से भागिए मत, अपने ऑरा को क्लोज कर लीजिए. These are the 3 tricks you can do and you will not feel drained
आफ्टर टॉकिंग टू दीज पीपल, वो जो आपकी एनर्जी करके नीचे आती है ना, वो नहीं आएगी. It was really needed for me actually, because I hear lots many, I would not say stories, but the journeys and the problems every alternate days now. I want to trouble you once again. यहाँ पर किसी मेंबर ने लिखा है कि एक बार और रिपीट कर दीजिए दो 3 ट्रिक्स. Okay. Now 3 tricks to close your aura are, first of all, you put your thumb here and close your hands. अब आप किसी की बात सुनिए, आपका aura closed है. Other or what you can do is, हम हाथों को ऐसे बांध लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं ना, क्रॉस करके बैठते हैं, क्रॉस करके बैठ जाइए, और you can cross your legs, अपने legs को क्रॉस करके बैठ जाइए. Any of these 3 or these 3 together, they will work the same. आपका aura close हो जाएगा. बिकॉज हमारी बॉडी हमारे इमोशन से कनेक्टेड है. ओके, इट इज कनेक्टेड. आपको पता है जो विनर्स होते हैं, कोई ओलंपिक रेस जीतता है तो वो क्या एक्शन करता है, वो ऐसे करता है, राइट? हाथ हवा में उठाता है. आपको पता है ब्लाइंड लोग भी वही करते हैं, उन्हें किसी ने नहीं बताया कि जीतते हैं तो ऐसे करते हैं. ये विक्ट्री का बॉडी पोस्चर है. तो ये ऑरा क्लोजिंग का बॉडी पोस्चर है. जस्ट क्लोज योर ऑरा, क्लोज योर ऑरा. इट विल नॉट अफेक्ट यू. I did not knew. Yes. See the races, para athletics की races देखिए, when blind people are running and they win, जैसे वो ribbon touch करता है, they do the same action. अब उन्हें किसी ने नहीं बताया कि जीतने के बाद ऐसे करना है. It is a way of body to show victory. So everybody shows victory in the very same way. So this is our body's way to show that my aura is now closed. और एक और छोटी सी ट्रिक जो मैं बताना चाहूंगी, अगर आपको सैड लग रहा है, किसी एक इमोशन में आप फंस गए हैं, यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट, अपने बॉडी के मूवमेंट को चेंज कर दीजिए. चेंज योर फिजियोलॉजी. आपका जो मेनी ऑफ अस आर मदर्स हियर, आपका जो छोटा बच्चा है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर लो 5 मिनट. अगर कोई कूद कूद के घोड़े के जैसे चल रहा है, you cannot be sad in that physical motion. You cannot be sad. Right. And this trick works like magic. Just change your physiology. अगर आप को गुस्सा आ रहा है, खड़े हो जाओ and start walking. आपने अपनी बॉडी का मोशन चेंज किया ना, आपका मूड अपने आप अपने मोशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा. So try using that. There are lots of tricks. So I could only share a handful. No, before I wind up the session, I must tell you there was something for which I was upset yesterday. And one amazing thing happened. One of our MW member knew that I was talking to 2-3 people, so they knew that I am not talking in and I am upset. So उन्होंने उससे एक funny सा वीडियो बनवाया और उसको forward करके मुझे भेज दिया. And I was laughing. She's like, मैम आप sad मत होइए, ये आपके लिए भेजा है वीडियो. And this was such a nice gesture. I can relate with this because moment change हो गया. Yes. That's what, yeah. और ये तो आपने वीडियो से किया. हम अगर अपनी फिजिकल बॉडी का मूवमेंट चेंज कर देंगे ना, तो वो बहुत लास्टिंग भी रहेगा. आप वापस से जल्दी से उस इमोशन में आके नहीं बैठेंगे. और सैडनेस में सोफा लगा के कॉफी पीनी नहीं है. सैडनेस को ठीक करना है. We need to get out from there. We need to sit in a happy place. एक स्टोरी थी, I'll just finish with this story, that once there was a monk and there was his disciple and they were going towards their ashram. तो बीच में एक नदी थी. Now they were crossing. So before that river was there was a lady standing there and that lady was into prostitution. Now this lady said that I am too small, मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं रिवर से क्रॉस करूंगी ना तो मैं डूब जाऊंगी, पानी के साथ बह जाऊंगी, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? So the guru here, the monk was quite tall. So what he did was, उन्होंने उस लेडी को उठाकर अपने कंधे पे बिठाया and he crossed the river along with the disciple. रिवर क्रॉस होने के बाद उन्होंने उस लेडी को उतार दिया and they went to their ashram. Now the monk was absolutely normal. One day passed, second day passed, the disciple was very angry and irritated कि कहाँ तो ये हमसे बात करते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, कहाँ इन्होंने, that woman was a prostitute, उन्होंने उठा के कंधे पे बिठा लिया and he crossed. Now he decided I'll confront. तो 2 days बाद डिनर पे उस डिसाइपल ने उन मॉन्क से पूछ लिया that this is the problem. आपने क्यों उन्हें उठाया? आप तो इतनी सारी बातें बताते हो, नेगेटिव से दूर रहना, आपने उन्हें उठा के कंधे पे बिठा के क्रॉस करा दिया. Now what this monk said was very beautiful. He said,
मैंने तो नदी क्रॉस कराने के बाद उस लेडी को वहीं उतार दिया, तूने कंधे पे अभी तक बिठा रखा है, राइट? हमें नहीं बिठा के रखना है। जो भी है, जितनी भी परेशानियां हैं, उन्हें रोज उतारिए और खुद को खाली कर लीजिए। खुद को खाली करना बहुत जरूरी है हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के लिए। जस्ट क्लीन योर सेल्फ। हैप्पी तो आप हो ही, आपका नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी ही है। आप तो ये ब्लैक कलर हटा दो, अंदर से पिंक ही पिंक निकलेगा सब। Right. Just do that. Just remove this. Very nice. It was lovely to have you, and so many insights. I'm sure everyone is very happy. Though we had very less audience because people are going through lot many things nowadays. But yes, we're sharing this video with everyone, and I would want to have you again with your favorite topic, children and their hyperactiveness, how to handle them, how to take out their aggression, because आजकल बच्चे अंदर रहकर बहुत ज़्यादा Yes, yes, I yes, want that to is get happening. your insight for that. In your next session, we will decide on that. Definitely. The time. Thank you so much for all the beautiful reactions you all are giving me. Thank you very much. I am just a medium to share this with you. This is coming to me from there and I'm just sharing. So, मैं भी आप ही की तरह जर्नी में हूँ बीच में, और कुछ नहीं है. We are all the same. So thanks a lot, Ricky, from bottom of our heart. Thank you so much, girl. This really made an impact on the people who are watching. A positive aura has been created indeed. So take care. God bless. I love Thank you. you. Thank you. I love you too, and I love MW also. Thank you. Take care. Bye bye. Yeah, bye bye.